हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए, जो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी लेके आए हैं। बने रहिए हमारे साथ। हम उस स्टोरी को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि उसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक वर्ड का मीनिंग हम बताएंगे, हर एक लाइन का मीनिंग्स कैसा उठाया जा सकता है ये भी आपको बताएंगे। मतलब उस लैंग्वेज पे एक्सपर्ट होने के लिए जितना सारे चीज़ें ज़रूरत होता है उसको हम साइमल्टेनियसली उस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो को बिना स्किप के देख, क्योंकि पहले हम उसको क्या करेंगे, लाउडली पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर आप रीडिंग पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, रीडिंग करना सीख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा मीनिंग्स उठाया जा सकता है। तो हम उसको एक बार पहले लाउडली धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, सही प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे, कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है आप भी जान ले। तो जितना हो सके हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे। फिर हम उस पर क्या करेंगे, हम उसको पूरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, पूरे स्टोरी को लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड हम आपको बता चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बिना टाइम वेस्ट के हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाम जो है द सेवन वंडर्स। फर्स्ट पैराग्राफ से आप भी रीडिंग करने की कोशिश करें, रीडिंग इंप्रूव हो जाएगा। अन्ना वॉज a 9-year-old girl from the small village. She finished attending elementary school till 4th grade at her village. For the 5th grade onwards, she will have to get an admission in a school at a city nearby. She got very happy knowing that she was accepted in a very reputed school in a city. Today was the first day of her school and she was waiting for her school bus. Once the bus came, she got in it quickly. She was very excited. Once the bus reached to her school, all students started going to their classes. Anna also made it to her classroom after asking fellow students for direction. Upon seeing her simple clothing and knowing she is from a small village, other students started making fun of her. The teacher soon arrived and she asked everyone to keep quiet. She introduced Anna to the class and told that she will be studying with them only from today. Then the teacher told the students to be ready for the surprise test now. She told everyone to write down the seven wonders of the world. Everyone started writing the answers quickly. Anna started to write the answer slowly. When everyone except Anna had submitted their answer paper, the teacher came and asked Anna, "What happened, dear?" "Don't worry, just write what you know, as other students have learned about it just a couple of days back." Anna replied, "I was thinking that there are so many things. Which seven I can pick to write?" And then she handed her answer paper to the teacher. The teacher started reading everyone's answers, and the majority had answered them correctly, such as the Great Wall of China, Colosseum, Stonehenge, Great Pyramid of Giza, Leaning Tower of Pisa, Taj Mahal, Hanging Garden of Babylon, etc. The teacher was happy as students had remembered what she had taught them. At last, the teacher picked up Anna's answer paper and started reading. The seven wonders are to be able to see, to be able to hear, to be able to feel, to laugh, to think, to be kind, to love. The teacher stood stunned and the whole class was speechless. Today, a girl from the village, small village, reminded them about the precious gifts that God has given us, which are truly a wonder. Moral: value what you have, use what you have, trust what you have. You don't always have to look away to find an inspiration. God has given you all the strength to reach your goals. तो ये हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। हमने कोशिश की कि उसको अच्छे तरह प्रॉपर प्रोनाउंस करने की, हर एक वर्ड की। तो
फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कांट मिस एनी वीडियो। सो चले उसको पहले से हम स्टार्ट करते हैं। नाम जो है द सेवन वंडर्स। सेवन वंडर्स क्या होता है? 7 अजूबे। अजूबे जो होता है, वंडर्स जो वर्ल्ड का और विश्व का और जो भी हो, सब ऐसा अजीब जो चीज़ें हैं, बहुत हिस्ट्रिक जो चीज़ें हैं, 7 वंडर्स 7 अजूबे, उसके रिलेटेड स्टोरी होने जा रहा है। तो टाइटल को समझ में तब आ जाएगा जब हम पूरे स्टोरी को एक बार कवर कर लेंगे। तो देखते हैं स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन जो हमारा है, अन्ना एक नाम है। वॉज ए 9-year-old गर्ल। कौन था? वॉज एक 9 साल का ओल्ड गर्ल, बच्ची। अन्ना कौन? एक 9 साल का बच्ची। फ्रॉम द स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव से। फ्रॉम द स्मॉल विलेज, कहाँ से? एक छोटे गांव से। शी फिनिश्ड अटेंडिंग एलिमेंट्री स्कूल टिल 4th grade एट हर विलेज। शी फिनिश्ड, उसने कंप्लीट कर दी। फिनिश मतलब कंप्लीट कर दी, खत्म कर दी। अटेंडिंग एलिमेंट्री स्कूल, जो प्राथमिक लेवल के, जो छोटे लेवल के जो स्कूल होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल। किस क्लास तक? टिल 4th grade, अपना 4th क्लास तक जो स्कूल होता है, एलिमेंट्री स्कूल, उसको फिनिश कर दी। एट हर विलेज, कहाँ? अपने गांव पे। मतलब गांव का स्कूल जो एलिमेंट्री स्कूल होता है, उसमें क्लास 4 तक, ग्रेड 4 तक अपने कंप्लीट कर दी अन्ना ने। फॉर द 5th grade ऑनवर्ड्स, लेकिन अब क्या हो गया? क्लास 4 के बाद जो ग्रेड 5th पे आता है, तो ऑनवर्ड्स मतलब उसके आगे चलने के लिए, आगे फिर पढ़ने के लिए, शी विल हैव टू गेट एन एडमिशन। शी विल हैव टू गेट एन एडमिशन। विल हैव टू मतलब उसको लेना पड़ेगा। शी विल हैव टू एक फ्रेज है, विल हैव टू। विल हैव टू फ्रेज का भी यूज हमने पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने अभी तक नहीं देखे उस फ्रेजेस के यूज के बारे में, तो प्लीज जाके चैनल पे विजिट करके उस फ्रेज वाले वीडियो में देख ले। बहुत सारे फ्रेज का हम एग्जाम्पल के थ्रू विद हिंदी मीनिंग्स हमने बताया है। तो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, देख ले उसको। शी विल हैव टू गेट एन एडमिशन। गेट मतलब पाना। शी विल हैव टू, उसको पाना पड़ेगा। एन एडमिशन, एडमिशन लेना पड़ेगा। इन स्कूल एट ए सिटी नियर बाई। सिटी कहाँ? एक शहर पे, नियर बाई उसके पास, गांव के पास जो सिटी है, जो शहर है, उस पर एडमिशन लेना पड़ेगा 5th grade से आगे पढ़ने के लिए। 5th grade से आगे, ऑनवर्ड्स मतलब 5th grade से लेकर आगे पढ़ने के लिए। शी विल हैव टू गेट एन एडमिशन, उसको एडमिशन पाना पड़ेगा। इन स्कूल, कहाँ? एक स्कूल पे। एट ए सिटी नियर बाई, नियर बाई मतलब पास में, एक सिटी में। उसके बाद क्या हो गया? शी गॉट वेरी हैप्पी। शी गॉट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। शी गॉट वेरी हैप्पी, अरे भाई कहाँ? शी गॉट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। नोइंग, ये जान के, नोइंग ये जान के, दैट क्या जान के? शी वॉज एक्सेप्टेड, के उसको एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट किया गया। इन ए वेरी रेपूटेड स्कूल इन ए सिटी, कहाँ? एक रेपूटेड, रेपूटेड होता है बहुत नामी दामी जो स्कूल है, बहुत रिनाउंड जो स्कूल है, बहुत अच्छा खासा, बहुत बड़े स्कूल है। एक सिटी के बड़े स्कूल पे, स्कूल इन ए सिटी, कहाँ? स्कूल कहाँ था? सिटी पे था। इससे नामी दामी एक स्कूल पे उसका एडमिशन के लिए उसका एक्सेप्ट किया गया। तो ये जान के शी गॉट वेरी हैप्पी। शी गॉट वेरी हैप्पी नोइंग, ये जान के, दैट शी वॉज एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट किया गया। इन ए वेरी रेपूटेड स्कूल, एक बड़े नामी दामी रिनाउंड स्कूल पे, इन ए सिटी के। टुडे वॉज द फर्स्ट डे। टुडे आज क्या है? वॉज आज था, द फर्स्ट डे पहला दिन, ऑफ हर स्कूल अपने स्कूल का पहला दिन था। एंड शी वॉज वेटिंग, एंड शी वॉज वो वेट कर रही थी। वॉज वेटिंग, वॉज आता है कब? फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी, वॉज एंड वेयर आता है फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वॉज आता है जब एक लोग होते हैं, तो यहाँ सिर्फ शी है, वो एक ही है, इसलिए वाज आया। एंड वाज आया इसलिए उसके बाद जो वर्ब आया वेट, उसके साथ आईएनजी आया। शी वाज वेटिंग, वो वेट कर रही थी, वो इंतजार कर रही थी। फॉर हर स्कूल बस, अपने स्कूल बस के लिए। वंस द बस केम, जब बस केम मतलब आ गया, कम मतलब आना, COME कम मतलब आना, केम कम का पास्ट है मतलब बस आया। शी गॉट इन, शी गॉट इन इट क्विकली, उस पे मतलब बास पे उठ गया, क्विकली जल्दी से बास पे उठ गया। शी वॉज वेरी एक्साइटेड, एंड क्या थी? शी वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत उत्तेजित थी। क्यों? आज नए स्कूल पे जा रही है, बड़े स्कूल पे, रेपुटेड स्कूल पे, शहर के स्कूल पे जा रही है पढ़ने के लिए, तो बहुत वेरी हैप्पी थी। उसके बाद हमारा से उस पैराग्राफ में आया,
उसको देख लेते हैं अच्छे से, तो वीडियो को बिना स्किप के देखिए हमारे साथ। वंस द बस रिच मतलब पहुंच जाना, RESCH रिच, RESCH रिच मतलब पहुंचना, जब ईडी लगाए मतलब पहुंच गया पास्ट है। वंस द बस रीच, जब बस पहुंच गया, टू हर स्कूल, कहाँ पहुंच गया, अपने स्कूल पे, उसकी स्कूल पे। ऑल द स्टूडेंट्स, जो सारे स्टूडेंट्स, सारे छात्रों, स्टार्टेड गोइंग मतलब जाना शुरू कर दिया था, स्टार्टेड गोइंग, ये आप याद रख ले, ये एक फ्रेज होता है, स्टार्टेड गोइंग, स्टार्टेड जो स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, गोइंग। ऐसे अगर एक वर्ब जो होता है, स्टार्ट भी वर्ब है, गो भी वर्ब है, एक वर्ब अगर फर्स्ट में आएगा स्टार्टेड, तो दूसरा वर्ब क्या आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। स्टार्टेड गोइंग मतलब किसी चीज शुरू हो गया था, चीज शुरू हो गया था। स्टार्टेड ईटिंग मैंने खाना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड ड्राइविंग मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया था। यहाँ स्टार्टेड गोइंग मतलब वो जाना शुरू कर दिया था। कौन? ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स स्टार्टेड गोइंग टू देयर क्लासेस, जाना शुरू कर दिया था टू देयर क्लासेस, अपने अपने क्लास पे, अपने अपने क्लास पे। उसके बाद क्या हो गया, अन्ना, जो अन्ना थी, ऑल्सो मेड इट, तो उसने भी ऐसा ही किया। ऑल्सो मेड इट टू हर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में जाना स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो मेड इट मतलब यहाँ स्टार्टेड गोइंग, ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग टू हर क्लासरूम, यहाँ मेड इट से कहा गया। यही खूबसूरती है, एक जगह यूज कर लिया तो दूसरे जगह दूसरे सिनोनिम्स यूज करके मतलब ऐसे मतलब समझा देते हैं। ऑल्सो मेड इट मतलब ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग, वो भी जाना शुरू कर दी थी हर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में। आफ्टर आस्किंग, कैसे, वो तो नहीं जानती, तो इसलिए आफ्टर आस्किंग पूछने के बाद, फिलो स्टूडेंट्स, फिलो होता है साथी, स्टूडेंट्स अपने साथी जो छात्र है उसको पूछने के बाद, फॉर डायरेक्शन अपना रास्ता, डायरेक्शन क्या होता है, रास्ता, क्लासरूम का रास्ता पूछने के बाद वो भी स्टार्टेड गोइंग, अपने क्लास में जाना स्टार्ट कर दी। हाँ समझ में आ गई आई थिंक। अपन सीइंग हर सिंपल क्लोथिंग, अपन सीइंग हर, ऑन सीइंग और अपन सीइंग, ये देख के, अपन सीइंग, SEE मतलब देखना। जब अपन फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है अपन से, और ऑन से, ऑन सीइंग हर और अपन सीइंग हर मतलब देख के, हर सिंपल क्लोथिंग, उसके मतलब बहुत बेसिक जो सिंपल, जो साधारण क्लोथिंग, कपड़ा देख के, एंड नोइंग, एंड ये जान के, नोइंग मतलब जान के, शी इज़ फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, के वो एक छोटे गांव से है, ये जान के, मतलब समझ लो यहाँ पर अच्छे से। अपन सीइंग, ये देख के, हर सिंपल क्लोथिंग, उसके साधारण कपड़ा देख के, एंड नोइंग शी इज़ फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, नोइंग मतलब जान के, शी इज़ फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, वो कहाँ से है, एक छोटे गांव से हैं। अदर स्टूडेंट्स, जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, सारे स्टूडेंट ने स्टार्टेड मेकिंग, फिर आया देखो, स्टार्टेड आया मेकिंग, फन ऑफ हार, फन ऑफ हार मतलब मजाक करना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड मेकिंग मतलब, मेक मतलब बनाना, मजाक बनाना, स्टार्टेड मेकिंग बनाना शुरू कर दिया था, क्या, फन ऑफ हर, मजाक बनाना, उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। किस लिए, यहाँ से है किस लिए, कि अपन सीइंग हर सिंपल क्लॉथिंग, उसका साधारण ड्रेस देख के, क्लॉथ कपड़ा देख के, एंड नोइंग ये जान के कि शी इज फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, वो छोटे गांव से है। अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, स्टार्टेड मेकिंग, उन्हें बनाना शुरू कर दिया था, फन ऑफ हर, उसका मजाक, उसी का मजाक बनाना शुरू कर दिया था। आई होप ये समझ में आ रहा है आपका। उसके बाद क्या है, द टीचर, टीचर जो है, सून बहुत जल्दी से, अराइव मतलब पहुंचे, ARRIVE, अराइव, अराइव होता है पहुंचना, ईडी लगा है मतलब अराइव्ड, सून पहुंचे, जल्दी से पहुंचे। एंड शी आस्क्ड, एंड टीचर ने पूछे, टीचर भी मैडम, मैडम है इसलिए शी आया, शी आस्क तो शी, उसने पूछे, एवरीवन सबको, तो कीप क्वाइट के शांत रहो, मजाक बनाना छोड़ दो, शांत रहो, शांत रहो, क्योंकि वो लोग मजाक बना रहे थे। टीचर जल्दी से आए एंड उनको पूछे कि तुम चुप रहो। शी इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस मतलब पहचान करवाना, इंट्रोडक्शन दिलाना, पहचान करवाना। शी मतलब टीचर ने इंट्रोड्यूस्ड अन्ना, अन्ना को दूसरों के साथ इंट्रोड्यूस कराए, पहचान दिलाए, टू द क्लास, पूरा क्लास को इंट्रोड्यूस कराए, एंड टोल्ड, एंड बताया पूरे क्लास को, टोल्ड, TELL, टेल मतलब बताना, टोल्ड मतलब बताया पूरे क्लास को, दैट क्या बताया, शी विल बी स्टडिंग, शी मतलब अन्ना, विल बी स्टडिंग वह पढ़ेगी, विद देम उनके साथ, ओनली फ्रॉम टुडे आज से। विल बी आया, विल बी होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट जो है शी, सब्जेक्ट है शी के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब लगता है विल बी, सब्जेक्ट के बाद विल बी। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस जब है, कंटिन्यूअस जहां भी आता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, वर्ब के साथ हमेशा ING आता है, वर्ब के साथ ING आता है। लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो एमिजर लगता, पास्ट कंटिन्यूअस होता तो वाजर लगता,
लेकिन यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस है इसलिए विल बी लगा, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी मतलब वो आगे से पढ़ेगी, वो आगे से आज से पढ़ेगी सामने। तो एंड शी टोल्ड शी विल बी स्टडिंग कि वो आज से पढ़ेगी विद देम तुम्हारे साथ, ओनली फ्रॉम टुडे आज से वो तुम्हारे साथ पढ़ेगी, ये बताया। तो अब आते हैं हमारा उस पैराग्राफ पे। देन द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, उसके बाद द टीचर ने टोल्ड द स्टूडेंट्स बताया स्टूडेंट्स को, छात्रों को, टू बी रेडी कि तुम रेडी रहो, तुम रेडी रहो, टू बी रेडी रेडी होने के लिए, फॉर द सरप्राइज टेस्ट नाउ। सरप्राइज मतलब एक अचानक सा टेस्ट। कभी कभी टीचर लोग ऐसे क्लास में ले लेते, अचानक से बताते यार अभी एक टेस्ट होगा तो प्रिपेयर कर लो, रेडी हो जाओ, ऐसे बताते। तो सरप्राइज टेस्ट यही होता है। तो शी टोल्ड एवरीवन, तो टीचर ने बताया, शी टोल्ड बताया एवरीवन हर एक को, टू राइट लिखने के लिए, राइट डाउन मतलब लिखने के लिए, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कि तुम विश्व के 7 अजूबे चीज को लिखो, अजूबे चीज के नाम लिखो। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होता है विश्व, पूरे विश्व के 7 वंडर्स, 7 वंडर्स का नाम लिखो। 7 वंडर्स 7 अजूबे चीजें। एवरीवन स्टार्टेड राइटिंग, तो हर एक ने, एवरीवन मतलब हर एक ने, स्टार्टेड राइटिंग फिर आया। देखो स्टार्टेड राइटिंग मतलब लिखना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड राइटिंग क्या, स्टार्टेड राइटिंग लिखना शुरू कर दिया था, हमने पहले ही बताया। स्टार्टेड ड्राइविंग ड्राइव करना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड ईटिंग खाना शुरू कर दिया था। यहाँ स्टार्टेड राइटिंग लिखना शुरू कर दिया था हर एक ने। द आंसर क्विकली, आंसर को क्विकली जल्दी से। अन्ना स्टार्टेड टू राइट द आंसर स्लोली, अन्ना ने शुरू कर दिया, अन्ना ने स्टार्ट किया लिखना स्लोली मतलब आहिस्ता से, क्योंकि अन्ना नई मतलब उस क्लास पे नया था, इसलिए उसने आहिस्ता से लिखना शुरू कर दिया। सब ने जल्दी से लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, when everyone except अन्ना, when सब लोग, when everyone जब, when होता है जब, everyone सब लोग, except अन्ना, except होता है EXCEPT मतलब होता है छोड़ के, छोड़ के, अन्ना को छोड़ के, except अन्ना, अन्ना को छोड़ के हर लोग, हैड सबमिटेड सबमिट कर दिया, हैड आया, सबमिटेड सबमिट कर दिया, देयर आंसर पेपर, अपना आंसर पेपर को सबमिट कर दिया, टीचर के पास दे दिया। द टीचर केम एंड आस्क अन्ना, तो टीचर, क्योंकि सब ने, क्यों, एवरीवन एक्सेप्ट अन्ना, अन्ना को छोड़कर सब लोग ने, सब स्टूडेंट ने जब अपना पेपर, आंसर पेपर सबमिट कर दिया टीचर को, तो द टीचर केम, टीचर आए, केम मतलब आए, किसके पास, अन्ना के पास, एंड आस्क अन्ना, आके पूछे अन्ना को पूछे, व्हाट हैपेंड डियर, क्या हो गया, डियर मतलब प्रियतमा तुम्हारा क्या हो गया, डोंट वरी तुम चिंता मत करो, डोंट वरी तुम चिंता मत करो, जस्ट राइट सिर्फ तुम लिखो, व्हाट यू नो जो तुमको पता है, जो तुम जानते हो, व्हाट यू नो जो तुम जानते हो, सिर्फ वही लिखो। एज क्योंकि अदर स्टूडेंट्स, बाकी जो स्टूडेंट्स है, हैव लर्नड, LEARNED, लर्नड आया, हैव आया इसलिए लर्नड आया, LEARNT भी कैसे, लर्नड भी हो सकता है, हैव के बाद लर्नड। तो हैव लर्नड अबाउट, थर्ड फॉर्म में हैव के बाद लर्न, LEARN जो होता है, एन का लर्न का थर्ड फॉर्म जो होता है वही आता है। तो हैव लर्न, हर एक ने सीख लिया, अबाउट इट, उसके बारे में, 7 वंडर्स के बारे में, जस्ट ए कपल ऑफ डेज बैक, कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले, जस्ट ए कपल ऑफ डेज बैक, बहुत अच्छा फ्रेज है, देख लो, जस्ट ए कपल ऑफ डेज बैक मतलब कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले बाकी सब ने उस 7 वंडर्स के बारे में सीख लिया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जल्दी से अपना आंसर लेके मेरे को सबमिट कर दिया। तो तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, जस्ट राइट व्हाट यू नो, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी तुम चिंता मत करो, जस्ट राइट सिर्फ लिखो, व्हाट यू नो जो तुम जानते हो। उसके बाद हमारा ये पैराग्राफ में आया यहाँ, अन्ना रिप्लाइड, तो अन्ना ने रिप्लाइड किया, ये बात सुन के अन्ना ने रिप्लाइड किया, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज फर्स्ट कंटिन्यूअस, इसलिए आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, दैट के देयर आर सो मेनी थिंग्स, कि यहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्या है यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, विच 7 आई कैन पिक टू राइट, कौन सी 7 चीज़ें, कौन सी 7 वंडर्स मैं उठा के लिखूं, आई कैन पिक टू राइट लिखने के लिए उठाऊं, कौन सा 7 चीज़ें, 7 चीज़ें मैं उठाने के लिए उठा के लिखूं, बहुत सारे चीज़ें हैं, क्योंकि आपने बताया 7 वंडर्स को लिखने के लिए, मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ। उसके बाद क्या हो गया, तो ये बात क्या है कि अन्ना ने क्या किया, एंड देन शी क्या क्या, हैंडेड हार आंसर पेपर, अपना आंसर पेपर जो है उसको हैंडेड मतलब दे दिया, सबमिट कर दिया टू द टीचर, अपने टीचर के पास।
द टीचर स्टार्टेड रीडिंग, तो टीचर ने क्या किया, स्टार्टेड रीडिंग, फिर आया, देखो वही फ्रेज बार बार आएगा, यही सब यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, तो उसको याद कर लो यार। स्टार्टेड रीडिंग मतलब पढ़ना शुरू कर दिया था टीचर ने। एवरीवन्स आंसर, हर एक के आंसर को, आंसर्स एंड, अब हर एक के आंसर को पढ़ना शुरू कर दिया था। एंड द मेजोरिटी, एंड मेजोरिटी कौन सा होता है, ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर लोग ने, छात्रों ने, हैड आंसर्ड मतलब आंसर कर दिया, देम करेक्टली, करेक्ट आंसर, सही सही आंसर कर दी। 7 वंडर्स जो मैम ने कहा था कि 7 वंडर्स के बारे में लिखो, तो ज्यादातर छात्रों ने क्या किया, करेक्टली आंसर कर दिया। सच है 7 वंडर्स का नाम क्या है आप भी जान ले। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक वंडर्स है, कोलोजियम और एक वंडर्स है, यहाँ क्या है, स्टोन हेज और एक नाम है, ग्रेट पिरामिड है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ताजमहल, ये भी एक 7 वंडर्स में है, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन एटसेट्रा। उन सारे 7 वंडर्स का नाम लिख दिए उन्होंने। तो टीचर ने पाया कि वो सब लोग तो सही लिखे हैं। उसके बाद क्या हो गया, द टीचर वॉज हैप्पी, द टीचर वॉज हैप्पी, टीचर बहुत खुश थे। एज स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने, हैड रिमेंबर्ड, याद कर लिया था, व्हाट शी हैड थॉट देम, जो उसने सिखाई थी, टीचर ने जो सिखाए थे उन लोगों को, उन्होंने सब ने याद कर लिया एंड लिख भी दिया सही सही, इसलिए टीचर बहुत खुश थे, टीचर बहुत खुश थे। थॉट मतलब सिखाना, TAUGH, थॉट मतलब सिखाना। टी जो टीच है, TEACH, टीच मतलब सिखाना, टीच का पास्ट है थॉट, TAUGH मतलब जो सिखाई थी, टीचर ने सिखाए थे, वो सब ने सीख लिया। रिमेंबर मतलब याद कर लेना, याद करके याद भी कर लिया एंड लिख भी दिया, इसलिए टीचर बहुत खुश थे, वॉज वेरी हैप्पी। एट लास्ट, सब मतलब आखिर में, एट लास्ट, एंड में क्या कर दिया, द टीचर पिक्ड अप, टीचर ने लिया, पिकअप मतलब लेना, लेना, पिक्ड अप मतलब लिया, अन्नाज आंसर पेपर, अन्ना के जो आंसर पेपर है उसको लिया, एंड स्टार्टेड रीडिंग, एंड पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। स्टार्टेड रीडिंग क्या होगा, पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद क्या हो गया, अन्ना ने क्या लिखा, अन्ना ने लिखा, द 7 वंडर्स आर टू बी एबल टू सी, हम देख सकते हैं, देखने की क्षमता जो है हमारा, टू बी एबल टू हियर, जो सुनने की जो क्षमता है, बी एबल टू हियर, हम सुन सकते हैं, टू बी एबल टू फील, हम फील महसूस कर सकते हैं, महसूस करने की जो क्षमता हमारा है, जो क्षमता और क्षमता जो हमारा है, टू बी, टू लाफ, हंसना, टू थिंक, चिंता करना, सोचना, टू बी काइंड, काइंड रहना, दूसरे की, दूसरे के साथ काइंड रहना, दयाबान रहना, टू लव, दूसरे को प्यार करना, प्यार करना, ये सब। तो अन्ना ने ये सब लिखा, अन्ना ने 7 वंडर्स क्या लिखा, 7 अजूबे चीज़ें जो है, टू बी एबल टू सी हमारा देखना, टू बी एबल टू हियर हमारा सुनना, टू बी एबल टू फील महसूस करना, टू लव हंसना, टू थिंक चिंता करना, टू बी काइंड, काइंड रहना, दयाबान रहना, टू लव प्यार करना। उसको देख के क्या हो गया, द टीचर स्टूड, टीचर स्टूड खड़ा रह गया, स्टैंड, STAND, स्टैंड होता है खड़ा रहना, स्टैंड का पास्ट स्टूड, खड़ा रह गई थी, स्टंड, स्टंड मतलब क्या होता है, स्टंड होता है मतलब दंग रह जाना, ये सुन के, उसका आंसर पेपर को पढ़ के जो हक्का बक्का हम कहते हैं, तो ऐसा मतलब स्टंड होके खड़ा रह गया, ऐसा दंग होके खड़ा रह गया। एंड द होल क्लास, एंड सारा क्लास, होल होता है सारा, कंप्लीट क्लास, पूरा क्लास, जो पूरा क्लास वाज स्पीचलेस, उनका बात ही बंद हो गई, स्पीचलेस मतलब जबान में कुछ बात ही नहीं रही, क्या कहे, सुन के मतलब पूरा साइलेंट हो गए, पूरा स्पीचलेस हो गए। एंड मैडम जी भी काले दंग खड़ा रह गए। टुडे, आज, ए गर्ल फ्रॉम द स्मॉल विलेज, एक बच्ची कहाँ से, फ्रॉम द स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव से, रिमाइंडेड हमको याद दिला दी, रिमाइंडेड, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, रिमाइंडेड याद दिला दी, देम उन लोगों को, अबाउट द प्रीशियस, जो कीमती गिफ्ट्स है, किसके बारे में, अबाउट द प्रीशियस, प्रीशियस होता है कीमती, जो बहुत कीमती होता है, गिफ्ट्स के बारे में, दैट गॉड, जो गॉड ने, जो गॉड ने, हमारे क्रिएटर ने, जो क्रिएटर होता है, गॉड लॉर्ड होता है, जो भी है, भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, जो गॉड ने हैज़ गिवन, गॉड हैज़ गिवन अस, जो गॉड ने हमको दिए हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में उस गांव के लड़की ने हमको याद दिला दी कि वही, विच आर ट्रूली ए वंडर, असली मतलब से वही वंडर है, वही अजूबे है, असली मतलब से ट्रूली, सही सही वही तो वंडर है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो भी हो, ये तो वंडर है, लेकिन असली महीने में, असली असली माने में वंडर कौन सी चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो गॉड ने हमें दिए हैं। तो मॉरल क्या है, मॉरल यही है, वैल्यू, कदर करो, व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसका वैल्यू करो, उसका कदर करो, यूज़, यूज़ भी करो, व्यवहार करो, व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसका सही सही यूज़ करो,
ट्रस्ट, विश्वास भी करो व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसका विश्वास करो। यू डोंट ऑलवेज हैव टू लुक अवे, हैव टू लुक अवे। यू डोंट, तुमको ऑलवेज मतलब हरगिज, यू डोंट हैव टू लुक अवे, तुमको देखना नहीं पड़ेगा, दूर दूर देखना नहीं पड़ेगा टू फाइंड, पाने के लिए, एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मिलने के लिए। तुम जो इंस्पिरेशन पाते हो मिलने के लिए तुमको बहुत दूर दूर जाना नहीं, खोजना पड़ेगा। बिकॉज किस लिए? गॉड हैज़ गिवन, गॉड ने हमें दिए हैं। गॉड हैज़ गिवन, गॉड ए फर्स्ट, देखो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। गॉड हैज़ गिवन, हैव एंड हैज़ कहाँ आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एंड हैज़ के बाद वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म आता है गिव, GIVE, गिव है फर्स्ट, गेव है सेकंड, एंड गिवन है थर्ड, गिव, गेव, गिवन। तो वर्ब हैज़ के बाद क्या आया? वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। गॉड हैज़ गिवन, जो गॉड ने हमें दिया है, यू ऑल, तुम सबको, द स्ट्रेंथ, जो शक्ति दिए है, टू रीच योर गोल्स, टू रीच मतलब पहुंचना, योर गोल्स, अपने अपने गोल तक, अपने अपने जो गोल सेट किए हैं, अपने एम तक पहुंचने के लिए गॉड ने हमें स्ट्रेंथ दिया है। तो ये मॉरल दिया गया है, मॉरल वैल्यूज थे जो गॉड ने हमें दिए हैं, वही काफ़ी है हमको इंस्पिरेशन मिलने के लिए। गॉड ने हमें वही चीज़ें दिए हैं जो बहुत काफ़ी है हमको हमारे गोल में पहुंचने के लिए। तो हमको ये सब की वैल्यू करना पड़ेगा, वैल्यू की ज़रूरत है। मॉरल बहुत अच्छा मॉरल दिया गया हमको, उस स्टोरी को कवर कर ली हमने, बहुत लंबा स्टोरी था, हमने अच्छी तरह कवर करने की कोशिश की, हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को हिट करके रखें, ताकि कोई भी नए वीडियो हम जब भी डालें आप मिस ना करें। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो हम फिर और एक अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।